Good morning, students. Welcome to our maths class. What is the day today? Today is Monday. And what is the date? Today is 7th September 2020. Children, today we will study about shapes. बच्चों, आज हम shapes के बारे में पढ़ेंगे. We will do addition and subtraction sums again, but before we will complete the shapes फिनिश करने के बाद हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक रिवीजन करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द शेप्स फर्स्टली. चिल्ड्रन, लेट्स राइट डाउन द डेट. फर्स्टली राइट डाउन today's date. What is the date today? Today is 7th September 2020 and the day is Monday. Our topic is shapes. Our today's topic is shapes. आज हम shapes के बारे में रीड करेंगे. यू हैव ऑलरेडी रेड समथिंग अबाउट इट. शेप्स के बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. सो टुडे वी विल रीड अबाउट स्क्वायर शेप. आज हम स्क्वायर शेप के बारे में पढ़ेंगे. शेप्स मीन्स पिक्चर्स, सम इमेजेस. लेट्स ड्रॉ अ शेप ओवर हेयर. In your notebook, draw a shape. अपनी नोटबुक में शेप ड्रॉ कीजिए. Children, you have seen this kind of shapes. आपने ऐसी shapes देखी हुई है ना. This shape is known as square. इस shape को हम square कहते हैं. There are 4 sides. जिन लाइंस की हेल्प से हमने शेप को ड्रॉ किया है उसे हम साइड्स कहते हैं. पेंसिल से आप सीधी लाइन स्ट्रेट, उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करेंगे और उसके बाद उन्हें ऐड कर देंगे, उनको ज्वाइन कर देंगे, साथ के साथ उन्हें ज्वाइन कर देंगे. सो वी हैव अ शेप कॉल्ड स्क्वायर. इट हैज़ 4 साइड्स. These are the sides. ये सभी लाइंस जो हैं these are called the sides of the shape. इन लाइंस को हम sides कहते हैं. We call them sides. A square has 4 sides. Square की 4 sides होती हैं and it has 4 corners. और square के 4 corners होते हैं. जो जहाँ पर लाइंस ज्वाइन करती हैं वो कॉर्नर होता है ना, दिखता है ना, कोने की जो पोर्शन होते हैं हम उसे कॉर्नर कहते हैं. इन द स्क्वायर ऑल साइड्स शुड बी इक्वल. स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होती हैं. ऑल साइड्स आर इक्वल इन द स्क्वायर शेप. स्क्वायर शेप की सभी साइड्स इक्वल होती हैं. वी विल राइट समथिंग अबाउट इट. लेट्स फर्स्टली सी सम पिक्चर्स. पहले मैं आपको स्क्वायर शेप्स की कुछ एग्जाम्पल्स शो करूंगी. चिल्ड्रन, it is a clock. It is square in shape. It is the example of square shape. You can see here it is a clock of square shape. आप देख सकते हैं यहाँ पे it is a clock of square shape. It has 4 sides. इस क्लॉक की 4 साइड्स हैं and these sides are equal. और ये सभी साइड्स इक्वल साइज की हैं. ऑल साइड्स आर इक्वल इन साइज एंड इट हैज 4 कॉर्नर्स. 1 2 3 4. It has 4 sides and 4 corners and all sides are equal. So this wall clock is an example of square shape. ये wall clock स्क्वायर शेप का एग्जाम्पल है.
Let us see some other shapes. What is this? It is a carom. You play with carom? आप लोगों को पसंद है कैरम खेलना? So which kind of shape it is? कैरम की शेप कैसी होती है? कैरम is also a square shaped board. कैरम बोर्ड भी स्क्वेयर शेप का ही होता है. कैरम has also 4 sides. कैरम की भी 4 sides होती हैं and it has 4 corners. और इसके 4 corners होते हैं. You can see in the picture 1, 2, 3, 4. सभी जानते हैं ना इस बात को. कैरम की 4 corners और 4 equal sides होती हैं. So it is also an example of shapes. कैरम भी shapes का एक example है. What is this, children? Can you recognize it? It is a whiteboard. What is this? It is a whiteboard. And whiteboard is also in square shape. Whiteboard भी square shape का ही होता है. You can see here, it has 4 equal sides and it has 4 corners also. Whiteboard के 4 equal sides और 4 corners हैं. Whiteboard भी square shape का एक example है. It is also an example of square shape. What is this, children? It is a bread. What is this? It is a bread. Bread आप लोग खाते हो ना? Bread जब आप अपने हाथ में उठाते हो तो आप नेक्स्ट टाइम से जब अपने हाथ में उठाओगे तो what you will recognize, what you will see here, क्या चीज़ आपके माइंड में आएगी? It is a square shape thing. Bread is a square shape object and it has 4 equal sides and 4 corners. Bread की 4 equal sides और 4 corners होते हैं. 1, 2, 3, 4. It has 4 corners. So bread is also an example of square. Bread भी square shape का ही एक example है. Is that clear to you? Let us see some other shape. What is this? Children, can you recognize this thing? It is a room. What is this, children? It is a room. आप लोगों के घर में आप लोग रूम को देखते हो चारों तरफ से. So what you will find, अगर आप चारों तरफ से रूम को घूम के देखोगे तो you will find that it is also a square shape. कि रूम की शेप भी स्क्वायर ही है. Is that clear to you? So room is also a square shape example. रूम भी हमारा स्क्वायर शेप का एग्जाम्पल होता है. It has also 4 equal sides and 4 corners. रूम के भी 4 equal sides और 4 corners होते हैं. So today we have seen so many kind of shapes, so many kind of examples related to square shape. अभी आपने इन examples में बहुत सारे square shape की pictures देखी हैं. You can find out some images by yourself. आप अपने आप भी कुछ चीज़ें find out करना अपने आसपास. Children, let's write down about the shape square. अब हम square के बारे में कुछ lines लिखेंगे. Just write down and remember these things. Learn these things. It is a square. It is a square. It has 4 sides. स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं. All sides are equal.
इन स्क्वायर। स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होती हैं। स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होती हैं, इक्वल साइज की होती हैं। इट हैज 4 corners। A square has 4 corners। स्क्वायर में कितने कॉर्नर होते हैं? 4। एंड एग्जाम्पल, रूम, क्लॉक, bread। Examples are room, clock and bread। Just see here, it is a shape, it is a square shape, it has 4 sides, it is a square, it has 4 sides। स्क्वायर की 4 sides होती हैं। All sides are equal in square। स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल साइज की होती हैं। जितनी लंबी हमने फर्स्ट साइड ड्रॉ की है उतनी ही लंबी हम दूसरी साइड भी ड्रॉ करेंगे। चारों हम चारों साइड्स इक्वल साइज की ही ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ड्रॉ द स्क्वायर विथ इक्वल साइड्स। स्क्वायर को ड्रॉ करते टाइम इक्वल साइज ही रखना चाहिए। इट हैज 4 corners। स्क्वायर के 4 corners होते हैं, 1 2 3 4। और इसके एग्जाम्पल्स हैं, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी देखे थे। रूम, क्लॉक, ब्रेड। आई हैव रिटन हियर रूम, क्लॉक, ब्रेड। आप लोग और भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। यू कैन फाइंड आउट सम अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो। आप लोग अपने कुछ अलग एग्जाम्पल्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? बच्चों, ये बहुत टॉपिक समझ में आया आपको? सो ड्रॉ द पिक्चर एट होम and write down the lines about shapes and find out some other shapes near to your house। अपने घर के आसपास और चीज़ों में भी आप स्क्वायर शेप फाइंड कीजिए और उनकी पिक्चर्स ड्रॉ करके या पेस्ट करके अपनी नोटबुक में पेस्ट कीजिए। ड्रॉ और पेस्ट सम पिक्चर्स रिलेटेड टू शेप। अपनी नोटबुक में स्क्वायर से रिलेटेड शेप्स ड्रॉ कीजिए या फिर पेस्ट कीजिए। इज दैट क्लियर टू यू?